Welcome to Sharad V. More English School online lecture. So, student, now yes, we are going to study the lesson number 9, disaster management. Now, see the first question. Can you recall what do you mean by disaster? What do you mean by disaster? So, what is disaster? Okay, so now yes, listen the answer of it. Disaster is a sudden event that causes large scale destruction to life, property, and social aspect of the nation and society. Okay, so this is the sudden event that happen naturally or by man-made activity that brings about yes large scale damage to life, property, and yes other things. Now second, what are the different types of the disasters? So here the mainly disasters are classified into two categories: man-made disaster and natural disaster. Last year we have introduced various natural calamities, disasters. This year we are going to study about the earthquake and some other natural calamities. So last year, yes, there were one lesson in that. Yes, there was yes different natural calamities or disasters were given. Here you have to study in detail about the earthquake. Now yes, observe the figure 9.1. Okay, what is shown in the figure 9.1? Yes, there are cracks in the roads and cracks in the buildings. Okay, cracks रोड और क्या है बिल्डिंग्स में दिखाई दे रहा है. Earthquake. Now what is the earthquake? Earthquake, the its meaning in Hindi is भूकंप. Okay, और या क्या बोल सकते हैं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं जलजला. ओके, अर्थक्वेक को जलजला और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भूकंप. Now sudden vibration on earth and shaking of the earth surface ground is called an earthquake. So what is earthquake? Sudden vibration on earth. अर्थ में अचानक सा वाइब्रेशन होना एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ या अर्थ सरफेस का क्या होना शेक होना. शेक मतलब क्या हिलना. इज कॉल्ड अर्थक्वेक मीन्स जो लैंड है जमीन है या यू कैन से अर्थ if there is a yes strong vibration in earth and there is shaking of the earth, so such or this event is called as earthquake. These cause seismic waves leading to movements of earth surface like tremors, shaking, or it goes up down. Now yes, what happens here? There is a production of the seismic waves. Okay, means when earthquake occurs, that time there is generation of seismic waves, and this seismic waves brings about movement of the earth surface like tremors, and movement of the earth surface like tremor, shaking of it goes up and down. So now yes, this seismic waves brings about the ट्रेमर्स. ओके, ट्रेमर्स मीन्स क्या है वो भी हिलना. ओके, तो ट्रेमर्स लेकर आता है कौन सिस्मिक वेव जिसकी वजह से अर्थ क्या होती है हिलती है. शेकिंग उसका भी मतलब क्या होता है ये हिलना. और क्या है गोज अप एंड डाउन. गोज अप एंड डाउन मीन्स वाइब्रेट होना. द शॉक्स एंड वेव्स फॉर्म्ड इन दिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, नाउ दिस शॉक्स. ओके, जो झटका शॉक मीन्स क्या झटका. ये झटका और जो वेव्स सिस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. ये क्या होते हैं उस सेंटर से सभी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं. जहाँ पे क्या होता है ये जिस पार्ट से ये स्टार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर. तो एपी सेंटर से क्या होता है ये ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है. The central point of earthquake is the point above epicenter on the earth's surface. Strong convulsions or waves at the first reach to epicenter, therefore major loss occur near that area. Okay, तो क्या होगा what is epicenter? The area exactly above the
is focal point from where the that seismic waves are created or generated, that area is called epicenter. मतलब कि क्या है, जहाँ से ये वेव स्टार्ट होते हैं, जहाँ से ये वेव क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, उसके एग्जैक्टली ऊपर वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। और एपीसेंटर वाले एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस होते हैं। नाउ सी हियर डायग्राम में यहाँ पे शो किया है। यस, यहाँ पे क्या है, यस देखो, ये जो सेंटर है, ये सेंटर जहाँ पे सिस्मिक वेव यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई है, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर वाला जो एरिया है, उसी को एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एपी सेंटर। ओके, क्लियर हो गया। जैसे कि क्या होता है, ये सर्कल है, ओके, सपोज ये सर्कल है, अब ये सर्कल का सेंटर है, तो सेम वैसे ही जब क्या है सिस्मिक वेव्स जब स्टार्ट होती है, ओके, तो जो ये सेंटर है, सेंटर, ओके, सेंटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ओके, दिस इज 2D, इसलिए एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3D डायग्राम में बराबर से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सेंटर से क्या हो रहा है, वेव्स स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो क्या है, ये वेव कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में क्या होती है, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है। अब जो इस सेंटर के ऊपर वाला जो एरिया है या जो ज़मीन है, उस ज़मीन को, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो जो एपी सेंटर होता है, उसी एपी सेंटर वाले में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज क्या है, लाइफ की होती है। बिकॉज एपी सेंटर वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन और ट्रेमर्स और यू कैन से शेकिंग इज यस क्या है, फास्टर देन अदर एरियाज। तो जो क्या होगा, ये एपी सेंटर से जैसे जैसे वेव्स क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। मीन्स वहाँ पे अर्थक्वेक का इफेक्ट कम होगा। Shock occur due to an earthquake can be mild or intensified. ओके, तो क्या है, जो शॉक, जो झटका लगता है अर्थक्वेक की वजह से, वो माइल्ड हो सकता है, हल्का हो सकता है, और इंटेंसिफाइड हो सकता है, या एक्यूट हो सकता है, बहुत हल्का हो सकता है। ऑन द अर्थ mild earthquake occur in a larger number than the intensified or runners। तो अर्थक्वेक में जो क्या है, ये माइल्ड अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा होता है। एवरीडे अर्थक्वेक आर नोटिस एट सम और अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। नाउ यस, on the earth, okay, every day there is earthquake, but that earthquake are not is very destructive, but sometimes this become very destructive। वो सभी डिस्ट्रक्टिव उतना ज़्यादा नहीं होते, और सम टाइम वो क्या होते, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, एवरी ईयर नियरली 12,400 to 14,000 earthquake occurs on the earth। ओके, जो क्या है, ये जो ये डिपार्टमेंट है, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, उसने ऑब्जर्व किया है, और क्या है, ये मेड रिकॉर्ड दैट एवरी डे अबाउट 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक ऑकर्स एवरी ईयर। हर साल इतने अर्थक्वेक होते हैं। Earthquake occur on earth, okay, now you see, from this it is noticed that earth is continuously vibrating। So yes, from this data, yes, it is come to know that earthquake occurs continuously, and because of that earth vibrates. The machine instrument which records the earthquake is called seismograph or seismometer, and the accentuation intensity is measured in Richter scale, no sorry, reactor scale,
This is one of the mathematical measuring units. Effect of the earthquake are mentioned below. Study them carefully. Now see, in figure 9.3 seismometer is given. So here what we are observing, there is one part in the device that attach the pencil or yes writing instrument, and here there is a roll of paper. So when there is a vibration, this roll of paper move up and down, okay, and this paper roll of paper is attached with the pencil or pen, and that's why yes there is some up and down movement shown or plotted on the papers. Now if the vibration is high, then the trap or crest, okay, will be high and low. In second one, here the roll of paper is placed laterally, yes, placed horizontally, and the instrument which is carrying the pencil or pen is attached with the that yes roll of paper. So when there is a vibration, here this roll of paper vibrate, and then there is a yes formation of the yes trough and crest on that paper. And this, if the yes that vibration is high, then from the center the trough and crest will be formed is larger, longer as compared to the yes mild earthquake. Cause of an earthquake and effect of an earthquake. So first we have to see causes of the earthquake. Volcanic eruptions, okay, when there is a bursting of the volcanoes, means ज्वालामुखी जब फटता है, that can bring about the earthquake. Stress of the big dams on the earth, okay, we know that yes, for fulfill the requirement of the water, the large dams are constructed on the earth, and because of the high yes large pressure of the water stored in the dam, yes produce the large pressure on the rocks which are present in the earth, and because of that pressure sometimes that rocks breaks, and because of breaking of that rocks, yes the earth शेक, ओके, अर्थ क्या होती है, शेक, हिल जाती है उस टाइम, तो क्या है, दैट ब्रिंग्स द अर्थक्वेक. Mining, yes, during the mining activity to break the big stones, the dynamites bombs are used to break that stone into small pieces, and because of using the dynamites and bombs, yes that earth shake, means it brings about the earthquake. Underground atomic test. Now yes, atomic test is done by making the tunnels inside the earth, and this brings about the earthquake. Now yes, fifth one, water percolates through the cracks of the earth due to tremendous heat. Water converted into the steam form tries to come out from the loosened earth surface, causing the earthquake. Now yes, we know that yes we get the drinking water from the earth crust. So here, when because of the heat that water get converted into the steam, and that steam is light in weight and come out, try to come out from the earth crust, and whenever wherever there is a weak rock present in the earth crust, that breaks, and this brings about the earthquake.
तो क्या होता है ये यहाँ पे percolate, meaning of percolate means is that get collected after the leaking. ओके तो जो क्या है अपर सरफेस जो है रॉक का उसमें से क्या है ये वाटर उसके नीचे वाले रॉक में क्या होता है लीक होकर, ओके लीक होकर क्या होता है ये जहाँ पे भी डिपेन एरिया होता है उस रॉक में जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं परकुलेट होना। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है ये अगर घर के सीलिंग पे अगर क्या है ये बाथरूम बना हुआ है और बाथरूम बना हुआ है तो क्या है ये कहीं पे अगर होल है तो क्या हो जाता है वो पानी जमा है तो उस होल से ये क्या होता है वो लीक होता है नीचे। ओके जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई रह रहा है और बाथरूम है तो क्या होता है अगर वहाँ का जो फ्लोर है वो वीक हो गया है तो क्या होता है वो वाटर लीक होता है और लीक होकर कहाँ आ जाता है ये ग्राउंड फ्लोर में। तो सेम वैसे ही क्या होते हैं ये जो अर्थ है अर्थ के अंदर भी क्या होते हैं बहुत सारे रॉक्स होते हैं। तो जो रेन का वाटर होता है वो ऊपर रॉक के ऊपर क्या रहता है डिपॉजिट रहता है और जब वहाँ पे क्या होता है डिपॉजिट रहता है और धीरे 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 लीक करके वो नीचे जहाँ पे गहराई वाला पार्ट रहता है जहाँ पे गहरा पार्ट रहता है जहाँ पे गैप रहता है तो वही यस उस गैप में लीक होकर रॉक से जो वाटर उस गहराई वाले डिपेन एरिया में कलेक्ट होता है तो उस लीकेज को ही क्या बोलते हैं परकुलेट होना। ओके तो यस इट इज सिमिलर टू द लीकेज, लीकेज की तरह ही ये भी है परकुलेशन। इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, loss of the human being, wild animal and pets. Because of the earthquake there is a huge destruction of the yes properties and the loss of lives of the human being, wild animal as well as pet animals. Second, economic loss at a larger scale. Economic losses occurs. For example, electric poles fall down, pipeline breaks, houses breaks, cracks develop in the houses, building collapse, road in the roads there are development of the crack, railway tracks are destroyed. Next, ecosystem destruction due to loss of the biodiversity. Now yes, ecosystem also destroyed because of the loss of biodiversity. We know that an ecosystem contain the biotic factor, abiotic factors, and in biotic factor there is a yes interrelation between the abiotic factor and biotic factor, and if any one of the is that living things in a food chain disturb then that ecosystem get disturbed. So while earthquake if any one of the type of the that animals died and because of that that food system get disturbed, that's why that ecosystem get destructed or yes disturbed. Possibilities of the fire in the cities increases. Now yes, because of the earthquake there is a possibility of the fire also because of the shock circuiting. If there is an earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby large scale destruction in the coastal areas. And if the earthquake occurs in the bottom of ocean, bottom means क्या है ये जो अंदर जमीन है पानी के नीचे जो जमीन है ओके जो क्या है एकदम तल उसको हम बोलते हैं। तो अगर उस बॉटम में अर्थक्वेक ये ओशन के हुआ अर्थक्वेक तो क्या होता है यस इट क्रिएट द सुनामी एंड द नियर बाय एरिया सिचुएटेड नियर द सी बीचेस गेट destroyed. Seventh, level of the water table changes. Okay, level of water table changes. Now the stored water level in underground also changes. Precautions to be taken at time of earthquake. अब earthquake के time कौन कौन से precautions लेना चाहिए? Okay, now see in figure A. Okay, that boy hidden below the table. Okay, yes, in figure B that boy क्लोजिंग द यस गैस स्टोव का क्या कर रहा है यस बटन क्लोज कर रहा है एंड वन पैन केप्ट ऑन हिज हेड सो दैट हिज हेड शुड बी प्रोटेक्टेड इन फिगर सी। ओके
पीपल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर में से क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से बाहर आ रहे, ओपन ग्राउंड में आ रहे। ओके, नाउ यस सी द फर्स्ट वन, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप वो घर में हो तो क्या करोगे, अपने आप को कैसे सेव करोगे फ्रॉम द अर्थक्वेक। If you are at home, then do not get scared and instead of running here and there, stand still at one place. Okay, अगर घर पे हो तो do not get scared, तो क्या है, बहुत ज़्यादा स्केयर मत हो, मतलब बहुत ज़्यादा डरो मत। एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ दौड़ने की बजाय क्या करो, एक जगह पे खड़े रहो। आइदर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड, या तो क्या है, ये फ्लोर पे बैठ जाओ, या तो क्या करो, जो बेड है या कोई क्या है ये टेबल जैसा हार्ड फर्नीचर है उसके नीचे बैठ जाओ, और एनी अदर फर्नीचर एंड कवर योर सेल्फ अंटिल द मोमेंट ऑफ द अर्थ स्टॉप, जब तक कि क्या है ये अर्थ की ट्रेमरिंग ओके एंड नहीं होती, तब तक क्या करना है आपको, उस टेबल के नीचे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है या बैठे रहना और यहाँ वहाँ मूव नहीं होना है। इफ़ देयर इज़ नो टेबल और एनी अदर शेल्टर देन सिट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम, अगर आपके रूम में क्या है, ये कोई टेबल नहीं है या ये बेड जैसा बेड नहीं है, उसके नीचे छुपने लायक नहीं है, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, रूम के कॉर्नर पे कहीं भी क्या है ये खड़े हो जाना चाहिए। एंड कवर योर हेड बाय द फोल्डिंग योर हैंड्स अराउंड इट, और उसके बाद जो है अपने हेड को ये प्रोटेक्ट करना है, और वो उसको भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने दोनों हाथों के जो फिंगर्स है, फिंगर्स को क्या करना है, सर के ऊपर रख लेना है। ओके, इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ, बिकॉज यस हेड को ही क्यों प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज यस हेड इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो हेड है वो क्या है, ये वही कोऑर्डिनेशन का जो क्या है सबसे मेन पार्ट है। सेकेंड, इफ़ यू आर इन द व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, अगर आप किसी व्हीकल्स में हो या घर के बाहर हो तो व्हाट यू विल डू, देन पार्क योर व्हीकल एट सेफ प्लेस एंड सिट इनसाइड इट, तो क्या करना है, व्हीकल को ये चलाते ही नहीं रहना है, क्या करना है, उसको स्टॉप कर देना है, एंड देन उसको एक जगह सेफ प्लेस पे पार्क करना है, खड़ा कर देना है, और उसके अंदर आपको बैठ जाना है। डू नॉट वेट नियर और बिलो टॉल बिल्डिंग, अब हम लोगों को किसी का भी इंतज़ार क्या है, ये ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर नहीं करना है, या किसी यस पोल के नीचे और क्या है यस किसी ट्री के नीचे खड़े होके किसी का इंतज़ार नहीं करना है। ओके, मतलब वी शुड नॉट हाइड अवर सेल्फ below the tall buildings or tall houses or yes trees and electric poles, because if they will fall they will harm to us, okay, and this can bring डेथ ऑफ अस। दैट्स वाई ये क्या करना है, हम लोगों को ऐसे टॉल बिल्डिंग के नीचे ये इंतज़ार नहीं करना है, रुक रहे नहीं रहना है, तो ओपन ग्राउंड में जाना है। अवॉइड डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अब क्या है ये चीज़ों को भी क्या करना है, अवॉइड करना है अर्थक्वेक के टाइम। अवॉइड यूजिंग द लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, अब ये मल्टी स्टोरीड क्या है, यस कई फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरीड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 5 महले की बिल्डिंग है तो क्या बोलते हैं उसको, 5 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, STORY, तो यहाँ पे स्टोरी का मतलब क्या है, मंजिला, तो मल्टी स्टोरीड मीन्स क्या है, बहुत सारे जिसमें मंजिलें हो, जैसे 20 महले की, 25 महले की, 30 महले की बिल्डिंग है, तो क्या करना है, यस अवॉइड यूजिंग लिफ्ट, जो बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है उसको यूज नहीं करना है। यस दैट टाइम यस वी हैव टू यूज़ द स्टेयर केस, जो क्या है ये जो सीढ़ियाँ लगी होती है उस सीढ़ियों को इस्तेमाल करना है। डू नॉट सिट इन डिसकम्फर्ट फॉर अ लॉन्ग, हम लोगों को ऐसी प्लेस पे नहीं बैठना है जहाँ पे हम लोग क्या है ये डिसकम्फर्ट फील करें, मतलब कि क्या है तकलीफ़ फील करें। डू सम फिजिकल एक्स मूवमेंट्स, ओके, और अगर वहाँ बैठे तो थोड़ा बहुत क्या है हाथ पैर क्या है हिलाते रहे, मूवमेंट करते रहे। आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फायर, ओके, अर्थक्वेक के बाद में क्या है ये वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। हैंड टू अवॉइड इट
केयरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जब भी घर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी मेन स्विच को बंद करना चाहिए। बिकॉज अगर क्या है ये वाइब्रेशंस होते हैं और वायर अगर ऊपर नीचे है, छोटे बड़े हैं, तो क्या होगा, ये वो ब्रेक होकर शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है ये घर में आग लग सकती है। तो हम लोगों को जो भी क्या है ये द डिवाइसेस विच आर functioning on electricity, to stop them we have to yes switch off the light, fan, tube light, etc. Do not use the candles, lanterns or matchbox, instead use torch or battery. एंड अगर घर में क्या है ये डार्क हो गया, दैट टाइम हम लोगों को कैंडल, लैंटर्न, मैच बॉक्स यूज नहीं करना। बिकॉज क्या होगा ये से बिकॉज ऑफ द ट्रेमरिंग दैट कैंडल और लैंटर्न में फॉल डाउन एंड द kerosene यूज इन द lantern yes can catch the fire, that candle fall to on the furnitures or other inflammable material that can cause the fire. तो that's why we have to use the torch। तो उस टाइम हम लोगों को टॉर्च की यूज करनी चाहिए। Okay student, now yes unmute yourself, if you have any doubt you can ask to me, then I will end the meeting। Yes student, is anybody having any doubt? Yes student, किसी को कुछ डाउट? Say yes or no। Okay, understood। Okay, yes, now I am ending the meeting।